Assalamu alaikum students. We have started this book Science 5. In last class we talked about some key words, some important words that appear in this chapter, and today we will be reading this chapter, and I'm sure you're going to love this chapter because the information in this chapter is very interesting. So let's start. This is the chapter. It's a nano world after all. Imagine a long day at school. Your feet have sweat all day. Now you are home. You're about to take off your shoes. If you are afraid of the smelly socks, then there is good news for you. A new type of socks has just been introduced. Wow! These socks have a special chemical that kills the germs that create the bad smell. Wow! Here is more to imagine. You are wearing your new shirt. Suddenly, someone drops some oily food on your shirt. The stain seems to be permanent. Your mom will be very upset. Don't worry. Your shirt contains a special material. Just rub off the stain. It will come right off. कैसी ज़बरदस्त बात है. ऐसे कपड़े होंगे कि आपके कपड़े के ऊपर चाहे बूट पॉलिश लग जाए, या चाहे मट्टी लग जाए, या सालन लग जाए, या पेन का निशान हो, आप ऐसे रब करेंगे और वो निशान साफ हो जाएगा. इंटरेस्टिंग. हियर्स अनदर वन. एक और सुनिए. लास्ट नाइट अ डस्ट स्टॉर्म ब्लू इन योर सिटी. कल रात आंधी चली. द विंडोज ऑफ योर हाउस आर वेरी डर्टी. और सारी आंधी की वजह से मट्टी जो थी आपके घर की जो खिड़कियां हैं उस पर चिपक गई. इट्स मॉर्निंग नाउ. द स्टॉर्म हैज़ मूव्ड अवे. नाउ यू आर सपोज टू क्लीन द विंडोज, राइट. तो अब आपको कहा जाएगा कि चलो जी खिड़कियां साफ करो. ऐसे ही है ना. नो नीड टू डू दैट. नो. द विंडोज ऑफ योर हाउस आर कवर्ड विद द स्पेशल मटीरियल. आपके घर की जो खिड़कियां थी उनके ऊपर तो लगा हुआ है भाई एक ख़ास किस्म का मटीरियल. द डस्ट विल बी वाइप्ड ऑफ द विंडो एज सून द सनलाइट हिट्स द विंडो पेन्स. तो अब आपकी ये जो खिड़कियां हैं उनके ऊपर जो मटीरियल लगा है ख़ास किस्म का, जैसे ही धूप उन पर पड़ेगी ऑटोमेटिकली खिड़कियां खुद ही साफ़ हो जाएंगी और वो सारी मट्टी उड़ जाएगी. आपको साफ करने की ज़रूरत ही नहीं है. द सॉक्स दैट डोंट स्टिंक. वो सॉक्स जिनमें से स्मेल नहीं आती. द स्टेन्स दैट कम राइट ऑफ. वो दाग और धब्बे जो खुद ही उतर आते हैं. द विंडोज दैट क्लीन दमसेल्व्स. और वो खिड़कियाँ जो खुद को खुद ही साफ करती हैं. All these things are now possible because of a new field of science called nanotechnology. तो ये सब मुमकिन हो रहा है एक नई फील्ड की वजह से जिसका नाम है नैनो टेक्नोलॉजी. So what is nanotechnology? We will tell you about that in a minute. But first let's study two more benefits of this amazing technology. All of us hate injections. They hurt. But sometimes the tablets and capsules don't work. You have to get an injection. No more. Once again, nanotechnology has made it possible to change the medicine delivered through injection into a tablet that you can swallow. तो अब नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से दवाई आपकी बॉडी में जाया करेगी. And here comes the most interesting part. You are on a bus or in a family car. You want to carry your laptop and TV with you.
but there is not enough space to keep any one of two. No problem. Just roll the TV like a paper in your pocket. ऐसे रोल करके टीवी को अपनी जेब में रख ले, जैसे कपड़ा रखते हैं या कागज़ रखते हैं. Unroll it, गाड़ी में बैठ के उसको खोलें. When you reach your destination, plug it in and it's on. जाके खोलें और उसको दोबारा बिजली में लगाएं तो वो टीवी जो कपड़े की तरह आपकी जेब में था वो टीवी बन जाएगा, चल पड़ेगा. Are you ready to find out how nanotechnology is making all this possible? To know more about this, first you will have to understand something about atoms. Understanding atoms. To understand atoms, consider this. Imagine a worthless soil particle in plane. It's so tiny when placed alone, but what happens when millions of these tiny particles join to form a shape like brick? तो रेत देखें, ज़मीन के ऊपर कितनी रेत होती है, रेत पड़ी हुई है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई शेप नहीं. लेकिन जब कोई उसको ईंटें बनाने वाले उसको एक सांचे में डालते हैं, उसको प्रेस करते हैं, उसको धूप में रखते हैं, तो वो एक ब्लॉक बन जाता है, जिससे फिर हम अपने घर में उसको लगाते हैं और उससे मकान बनता है. अ ग्रुप ऑफ हाउसेस फ्रॉम अ कॉलोनी एंड डिफरेंट कॉलोनीज मेक अ सिटी. तो जब वो रेत से ब्लॉक से घर, फिर बहुत से घर मिलते हैं तो एक मोहल्ला बनता है, फिर वो मोहल्ले बहुत से मिलते हैं तो एक शहर बन जाता है. ऑल द मैटर अराउंड अस, whether solid, liquid or gases, is made up of small units called atoms. बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी जो होती है वो भी एक पूरी सिटी है, एक पूरा मुल्क है. उसके अंदर भी डिफरेंट पार्ट्स हैं. ये सारे पार्ट्स किसी छोटी सी छोटी चीज़ से मिलके बने हैं, और उन छोटे से छोटे पार्ट्स को जिनसे मिलके ये हमारी सारी बॉडी बनी है उनको कहते हैं एटम्स. और एटम के बारे में कल तो हमने पढ़ा ही था कि एटम में एक न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, और फिर उसके आगे इलेक्ट्रॉन्स साथ घूम रहे होते हैं. चलिए कल अब हम मज़ीद डिस्कस करेंगे कि एटम के अंदर और क्या क्या होता है. शुक्रिया. और याद रखिए आपने इस सेशन के बाद लिखना है कि नैनो टेक्नोलॉजी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और वो लिख के आपने अपनी टीचर को बताना है. अल्लाह हाफ़िज़.